السلام علیکم ناظرین، ہوپ ٹوڈے انڈیا نیوز کے خاص خبرنامے میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں ناز مرزا۔ آئیے دیکھتے ہیں آج کی اہم خبریں۔ تفصیل سے قبل نظر ڈالیں گے آج کی اہم سرخیوں پر۔ اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ حیدرآباد میں گرج چمک کے ساتھ بارش۔ حیدرآباد کے کئی علاقوں میں آج شام سے بارش کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ بارش کی وجہ سے پانی سڑکوں پر جمع ہو گیا، جس کے نتیجے میں ٹریفک درہم برہم ہو کر رہ گئی۔ وقت ترمیم بل 2024 پر مشترکہ پارلیمانی کمیٹی 26 سپٹمبر سے 1 اکتوبر کے درمیان 5 ریاستوں میں منعقدہ اجلاسوں کے درمیان غیر رسمی بحث کرے گی۔ نوٹری دستاویزات کے رجسٹریشن کے لیے خصوصی مہم کا منصوبہ۔ ریاستی حکومت نوٹری کی ہوئی غیر رجسٹریشن دستاویزات کے خلاف خصوصی مہم چلانے پر سنجیدگی سے کر رہی ہے غور۔ مودی نے فلسطینی صدر عباس سے کی ملاقات۔ انہوں نے غزہ میں انسانی صورتحال پر گہری تشویش کا کیا اظہار اور ہندوستانی حمایت کا کیا اعلان۔ اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ حیدرآباد میں گرج چمک کے ساتھ بارش۔ حیدرآباد کے کئی علاقوں میں آج شام سے بارش کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ بارش کی وجہ سے پانی سڑکوں پر جمع ہو گیا، جس کے نتیجے میں ٹریفک درہم برہم ہو کر رہ گئی۔ وقت ترمیمی بل پر 5 ریاستوں میں جے پی سی کا اجلاس۔ وقت ترمیمی بل 2024 پر مشترکہ پارلیمانی کمیٹی 26 سپٹمبر سے 1 اکتوبر کے درمیان 5 ریاستوں میں منعقدہ اجلاسوں کے درمیان غیر رسمی بحث کرے گی۔ وقت ترمیمی بل 2024 پر مشترکہ پارلیمانی کمیٹی جے سی پی 26 سپٹمبر سے 1 اکتوبر کے درمیان 5 ریاستوں میں منعقدہ اجلاسوں کے درمیان غیر رسمی بحث کرے گی۔ اس دوران وقف قانون میں مختلف تجویز کردہ تبدیلیوں کو آسان بنانے کے لیے مختلف اسٹیک ہولڈرز کو شامل کیا جائے گا۔ خیال رہے کہ وقف قانون ملک بھر میں رجسٹرڈ وقف املاکوں کے انتظام کو کنٹرول کرتا ہے۔ رپورٹ کے مطابق پہلا اجلاس 26 سپٹمبر کو ممبئی میں منعقد ہوگا، جس میں مہاراشٹر حکومت، اقلیتی امور کی وزارت اور مہاراشٹر وقف بورڈ کے نمائندے شامل ہوں گے۔ یہ ابتدائی اجلاس وقف املاک کے انتظام میں شفافیت، انہیں مؤثر اور بااختیاری جیسے اہم مسائل پر توجہ مرکوز کرے گا۔ مشترکہ پارلیمانی کمیٹی اگلے دن 27 سپٹمبر کو احمد آباد، گجرات میں مشاورت کرے گی، جس میں گجرات حکومت، گجرات وقف بورڈ اور دیگر متعلقہ فریقوں کے نمائندے شامل ہوں گے۔ سرکاری اہلکاروں کے علاوہ بار کونسل، وکلا اور متولیوں کے قانونی پیشاور اس بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کریں گے کہ تجویز کردہ اصلاحات ریاست میں وقف املاک کے انتظام پر کس طرح اثر انداز ہو سکتی ہے۔ کانگریس صدر راہل گاندھی نے ایک بار پھر بی جے پی حکومت کو بنایا تنقید کا نشانہ۔ کہا کہ ہم ریزرویشن پر آج تک نہیں آنے دیں گے۔ لوک سبھا میں حزب اختلاف کے قائد راہل گاندھی ریزرویشن کے تعلق سے لگاتار آواز اٹھا رہے ہیں اور خاص طور سے بی جے پی کے ذریعے ان کے بیانات کو توڑ مروڑ کر پیش کیے جانے پر حملہ آور دکھائی دے رہے ہیں۔ ایک بار پھر انہوں نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ریزرویشن کے تعلق سے اپنی بات رکھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بہوجن مخالف بی جے پی چاہے کتنا بھی جھوٹ پھیلا لے، ہم ریزرویشن پر آج تک نہیں آنے دیں گے۔ ایکس پر کیے گئے اپنے تازہ پوسٹ میں راہل گاندھی لکھتے ہیں کہ ہم تب تک نہیں رکیں گے جب تک ایک وسیع ذات پر مبنی مردم شماری نہ ہو جائے۔ ریزرویشن پر سے 50% کی حد ہٹا کر ہر طبقے کو ان کا حق، حصہ داری اور انصاف نہ مل جائے، مردم شماری مستقل کی پالیسیوں کی بنیاد پر نہ بن جائے۔ نوٹری دستاویزات کے رجسٹریشن کے لیے خصوصی مہم چلانے کا ریاستی حکومت سنجیدگی سے غور کر رہی ہے، جس کے تحت غیر رجسٹرڈ دستاویزات پر اسٹیمپ لگائی جائے گی۔ ریاستی حکومت نوٹری کی ہوئی غیر رجسٹریشن دستاویزات کے خلاف خصوصی مہم چلانے پر سنجیدگی سے غور کر رہی ہے۔ غیر رجسٹرڈ دستاویزات پر اسٹیمپ لگائی جائے گی اور ان دستاویزات کی تصدیق
वैलिड की जाएगी। इस कार्रवाई के जरिए हुकूमत तस्दीक शुदा दस्तावेजात से आमदनी के साथ साथ अदालतों में उन्हें कारआमद बनाने का संजीदगी से जायजा ले रही है। फरोख्त का माहिदा सेलडेट के साथ दीगर शवाहिद को नोटरी किया जाता है। इस तरह नोटरी की हुई गैर रजिस्टर्ड लाखों दस्तावेजात है। नोटरी दस्तावेजात के खिलाफ एक खुसूसी मुहिम चलाने का मंसूबा बना रही है। जिस तरह ट्रैफिक चालानात के लिए मुहिम चलाई जाती है, इसी मुहिम के दौरान गैर मजाज दस्तावेजात को भी बाकायदा बनाने पर गौर किया जा रहा है। हाल ही में रियासत के अहदेदारों का एक वफद महाराष्ट्र पहुंचकर वहां के स्टैम्प एंड रजिस्ट्रेशन निज़ाम का मुतायला किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने फ़लस्तीनी सदर अब्बास से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने गजा में इंसानी सूरत-ए-हाल पर गहरी तशवीश का इज़हार किया और हिंदुस्तानी हिमायत का एआदा किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास से मुलाकात की और गजा की इंसानी सूरत-ए-हाल पर गहरी तशवीश का इज़हार करते हुए खित्ते में अमन और इस्तेहकाम की जल्द बहाली के लिए हिंदुस्तान की हिमायत का एआदा किया। मोदी अपने 3 रोज़ा अमरीकी दौरे के दूसरे मरहले में न्यूयॉर्क में हैं और इतवार को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास के मौके पर लीडर से मुलाकात की। न्यूयॉर्क में सदर महमूद अब्बास से मुलाकात की। खित्ते में अमन और इस्तेहकाम की जल्द बहाली के लिए हिंदुस्तान की हिमायत का उन्होंने एआदा किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने HE से मुलाकात की। महमूद अब्बास फ़लस्तीन के सदर और आज UNAG के मौके पर वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि पोस्ट में मज़ीद कहा गया कि मोदी ने गजा में इंसानी सूरत-ए-हाल पर गहरी तशवीश का इज़हार किया और फ़लस्तीन के लोगों के साथ हिंदुस्तान की हिमायत जारी रखने की तस्दीक की। जानिब से कर्ज माफ न होने पर जिला कलेक्ट्रेट का अहाता करते हुए दफ्तर का घेराव किया और अपनी तशवीश का इजहार किया और हुकूमत मुखालिफ नारे लगाए, जिसको पुलिस ने रोक दिया। सिद्दीपेट जिला कलेक्टर के दफ्तर में कर्ज माफ न होने पर किसानों ने तशवीश का इजहार करते हुए धरना मुनज़्ज़म किया। तफसीलात के मुताबिक वेंटापुर गांव कर्ज माफ न होने पर किसानों ने जिला कलेक्टर के दफ्तर का घेराव किया और अपनी तशवीश का इजहार किया। किसानों ने सरकारी रेडियो में शिकायत का इजहार किया और कलेक्टर को अर्जी दी। किसानों ने कर्ज माफी न मिलने पर कलेक्ट्रेट के सामने धरना दिया और नारे लगाए, क्योंकि अंदर सिर्फ चंद लोगों को ही भेजा गया था। बादिजा पुलिस ने इन किसानों को रोकने की कोशिश की और उन्हें मुंतशिर कर दिया। అన్న ప్రజావాణి అన్నప్పుడు ప్రజల వాళ్ళ సమస్యలు నిర్ణయించుకోవడానికి అవకాశం పెట్టిందే ఇది. మళ్ళీ మీరు ఇది పెట్టి పోకుండా లోపల పెట్టండి ఏమన్నా ఉంటే. కానీ అవెందుకు చేసి మీరు పోలీస్ కంచెలు जानवरों की चर्बी के इल्जामात लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की गई। ये अर्जी बीजेपी लीडर सुब्रमण्यम स्वामी ने दायर की है। सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दायर की गई जिसमें तिरुपति के श्री वेंकटेश्वरा स्वामी मंदिर के प्रसाद में जानवरों की चर्बी के इल्जामात की तहकीकात का मुतालबा किया गया। ये अर्जी बीजेपी लीडर सुब्रमण्यम स्वामी ने दायर की। अर्जी में सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की सदारत में SIT तहकीकाती कमेटी तश्कील देने का मुतालबा किया गया। दरख्वास्त में ईमान से खेलने वाले जिम्मेदारों के खिलाफ मुनासिब कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया गया। इससे कबल हिंदू सेना के सरबराह सरजीत यादव ने दरख्वास्त में कहा कि तिरुपति लड्डू में चर्बी और मछली के तेल के इंकशाफ से करोड़ों हिंदुओं के ईमान पर धचका लगा है। मोहतरमा लुबना सरवत ने जोनल कमिश्नर को कटपली GHMC को रवाना करता एक मकतूब में इस बात पर तवज्जो मबजूल करवाते हुए कहा कि हाइड्रा की कार्रवाई के बाद मलबा मलकुट्टा तालाब में डाला जा रहा है, जो कि गैर कानूनी है। हुकूमत की जानिब से सख्त कार्रवाइयों के दौरान हाइड्रा तालाबों के FTL और बफर जोन में की जाने वाली तामीरात को बर्खास्त कर रहा है, जबकि दूसरी जानिब मजलिस बल्दिया अज़ीमतर हैदराबाद की जानिब से तालाब में सड़क की तामीर के इक़दाम किए जा रहे हैं। लुबना सरवत ने जोनल कमिश्नर कुकटपल्ली GHMC को रवाना करदा एक मकतूब में इस बात पर तवज्जो मबजूल करवाते हुए कहा कि
कटवा तालाब में सड़क की तामीर के लिए तामीराती मलबा डाला जाने लगा है और उससे बल्दिया की निगरानी में मुसहता किया जा रहा है, जो कि गैर कानूनी अमल है। मोहतरमा लुबना सरवत ने बल्दी ओहदेदारों को रवाना करदा मकतूब में इनसे ख्वाहिश की कि वो मलाकट्टा तालाब में सड़क की तामीर के इस अमल को फौरी तौर पर रोकने के इक़दाम करते हुए इस तालाब को मलबे से भरने के अमल को बंद करने के इक़दाम करें। उन्होंने आला ओहदेदारों से अपील की कि वो अपने मातहतीन को फौरी तौर पर हिदायत जारी करे कि इस तालाब के तहफ़्फ़ुज़ के इक़दाम के तौर पर अब तक जो मलबा डाला गया है इसकी फौरी तौर पर निकासी करते हुए तालाब के FTL और बफर जोन की हिफाजत को यकीनी बनाने के इक़दाम करें। मूसा नदी रिवर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत मुतासिर होने वाले खानदानों को डबल बेडरूम मकाना देने का वजीर पूनम प्रभाकर रेड्डी ने वादा किया। शहर के इंचार्ज वजीर पूनम प्रभाकर ने मौजूदा मूसा रिवर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के बाइस मुतासिर होने वाले खानदानों से इंसाफ का तयक़ुन दिया। वजीर मौसूफ ने शहरियों से कहा कि वो परेशान न हो और इस प्रोजेक्ट की तकमील के सिलसिले में हुकूमत से ताउन करें। उन्होंने चंचलगुड़ा में 2 BHK हाउसिंग प्रोजेक्ट साइट का मुआयना किया, जहां 284 डबल बेडरूम्स यूनिट तामीर किए गए हैं। इनके हमरा मुकामी रुकन असम्बली अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला, प्रिंसिपल सेक्रेटरी अर्बन डेवलपमेंट दाना किशोर, GHMC कमिश्नर अम्रपाली, हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर अनुदीप डोरी शेट्टी और दिगर सीनियर ओहदेदार भी मौजूद थे। इस मौके पर मुखातिब करते हुए पूनम प्रभाकर ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के अहद का तज़किरा किया, जो मूसा नदी के किनारे को एक बड़े सयाहती मरकज में तब्दील करने का है। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिससे हैदराबाद के ग्लोबल इमेज में इजाफा होगा। उन्होंने अवाम को तयक़ुन दिया कि मूसा नदी को तरक्की देने के काम से मुतासिर और बेदखल होने वालों को डबल बेडरूम मकानात फराहम किए जाएंगे। बलाला गारू, ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ మున్సిపల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ గారు, మున్సిపల్ కమిషనర్ గారు, అదేవిధంగా మూసీకి సంబంధించిన అధికారులతో పాటుగా ఆర్టీసీ చైర్మన్ రామరెడ్డి గారు అందరం కూడా ఇక్కడ రావడం జరిగింది. ఈరోజు ఇక్కడ పిల్లి గుడిసెల్లో ఉన్నటువంటి డబుల్ బెడ్రూమ్లకు సంబంధించి ఒకసారి వాటి యొక్క పరిస్థితి గురించి చూసి ఇవన్నీ కూడా అక్కడ ఉంటున్న వాళ్ళందరితో పాటుగా హైదరాబాద్ లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరికీ కూడా మిగతా డబుల్ బెడ్రూమ్లు ఇవ్వాలనేటువంటి ఆలోచన ప్రభుత్వానికి ఉంది. వాటిని ఎంత వీలైతే దాని ప్రకారంగా మేము భవిష్యత్తులో తీసుకున్న ఇందిరమ్మ ఇళ్ల ప్రకారంగా చేస్తాం. ఇప్పుడు మూసీ అనేటువంటిది ఒక కార్యక్రమాన్ని ప్రభుత్వం, ఇది మళ్ళీ పాత నగరం కాదు, ఇది మళ్ళీ పునరుద్ధరించుకుంటున్నటువంటి నగరంగా, అంటే ఎప్పుడు కానీ ఒక దశ మహారదశ తిరుగుతూ ఉంటది. గతంలో పాత నగరం అనేటువంటి ఒక అట్టహాసంగా ఉన్నటువంటి ప్రాంతం ఈరోజు మళ్ళీ ఆ మూసీ ప్రాంతాన్ని అన్ని రకాలుగా పర్యాటక, పారిశ్రామిక లేదా పర్యావరణ, నీటికి సంబంధించినటువంటి దుర్వాస ఏం లేకుండా భవిష్యత్తులో ఇదొక అందమైనటువంటి టూరిజం ప్లేస్ గా కూడా ఉపాధి అవకాశాలను పెంచే वजीर हरीश राव ने खम्मम जिले में पानी के मसाइल को दूर करने में कांग्रेस की नाकामी पर उठाए सवाल। उन्होंने कहा कि खम्मम जिले में 3 गुजरा है और वो 23 दिनों से कम 10 बार खम्मम गए होंगे, मगर किसी ने भी वहां पर रुककर किसानों को हो रही पानी से मुश्किलात का जायजा नहीं लिया। वजीर हरीश राव ने खम्मम जिले में पानी के मसाइल को दूर करने में कांग्रेस की नाकामी पर उठाए सवाल। उन्होंने कहा कि खम्मम जिले में 3 गुजरा है और वो 23 दिनों से कम 10 बार खम्मम गए होंगे, मगर किसी ने भी वहां पर रुककर किसानों को हो रही पानी से मुश्किलात का जायजा नहीं लिया। జిల్లాలో 3 మంత్రులు ఉన్నారు. పొంగులేటి శ్రీనివాసరెడ్డి గారు, బట్టి విక్రమార్క గారు, తుమ్మల నాగేశ్వరరావు గారు. ముగ్గురు ఈ గండిబడ్డ కాలువ పక్క నుంచే పోతారు. రోజు ఖమ్మం పోవాలంటే ఆ రోడ్డు ఈ గండికి 100 మీటర్ల దూరంలోనే పోతుంది. దాన్ని పక్కకెళ్ళే పోతున్నారు. మరి 23 రోజుల్లో కనీసం వీళ్ళు ఒక 10 సార్లు పోయొచ్చుంటారు ఖమ్మం. ఆగి ఆ గండి ఎందుకు పూడుస్తలేరు, ఎప్పుడు పూడుస్తారని ఒక రివ్యూ చేసేంత తీరిక గాని కన్సర్న్ గాని మీకు లేదా అని అడుగుతా ఉన్న ఖమ్మం జిల్లా మంత్రులకు. ఇక మాట్లాడమంటే దునియా మాట్లాడతారు ఈ ముఖ్యమంత్రి గారు, మంత్రులు. మేము ఆకాశాన్ని దించుతాం, సూర్యుడిని వంచుతాం, మేము ఇటున్న సూర్యుడు అటు పొడిచినా, అటున్న సూర్యుడు ఇటు పొడిచినా చేసి తీరుతాం. డైలాగులు కొట్టమంటే వేరే డైలాగులు కొడతారు. 22 రోజుల్లో ఒక గండి పూడ్చడం చేత కాదా నీకు? ఇక మాటలు మాట్లాడమంటే ఆకాశాన్ని వంచుతాం, సూర్యుడిని దించుతామని మాట్లాడతారు.
గండి పూడ్చడం 22 రోజులుగా ఒక గండి పూడ్చడం చేత కాలేదు అంటే ఇది ప్రభుత్వ నిర్లక్ష్యం కాకపోతే, ఇది మీ నిర్వాకం కాకపోతే ఇంకేంటి అని చెప్పి నేను ఈరోజు అడుగుతా ఉన్నా. 9 మంది ఎమ్మెల్యేలను ఖమ్మం జిల్లాలో గెలిపిస్తే పంటలు ఎండబెట్టడమే మీరు ఆ రైతులకు ఇచ్చే బహుమానమా అని అడుగుతా ఉన్నా. 9 మంది ఎమ్మెల్యేలను గెలిపిస్తే హెలికాప్టర్ కూడా పంపకుండా 9 మంది ప్రాణాలను బలిగొట్టినటువంటి పరిస్థితి మీది. 3 మంత్రులు ఉన్న జిల్లాలో 3 లక్షల ఎకరాల పంటను ఎండబెడుతున్నటువంటి పరిస్థితి. ఇదా కాంగ్రెస్ పార్టీ చేసినటువంటిది? इख्तिताम से खबर हेडलाइन। अब पेश है खबरों की तफसील। हैदराबाद में गरज चमक के साथ बारिश। हैदराबाद के कई इलाकों में आज शाम से बारिश का सिलसिला शुरू हो गया। बारिश की वजह से पानी सड़कों पर जमा हो गया, जिसके नतीजे में ट्रैफिक दरहम बरहम होकर रह गई। वक्त तरमीमी बिल 2024 पर मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी 26 सितंबर से 1 अक्टूबर के दरमियान 5 रियासतों में मुनक्किदा इजलासों के दरमियान गैर रस्मी बहस करेगी। नोटरी दस्तावेजात के रजिस्ट्रेशन के लिए खुसूसी मुहिम का मंसूबा। रियासती हुकूमत नोटरी की हुई गैर रजिस्ट्रेशन दस्तावेजात के खिलाफ खुसूसी मुहिम चलाने पर संजीदगी से कर रही है गौर। मोदी ने फलस्तीनी सदर अब्बास से की मुलाकात। उन्होंने गजा में इंसानी सूरत हाल पर गहरी तशवीश का किया इजहार और हिंदुस्तानी हिमायत का किया ऐलान। तो नाज़रीन, ये थी होप टुडे इंडिया न्यूज़ की तमाम तफसीलात। मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।